خبروں کا آغاز کریں گے اور خبر دیں گے صوبائی وزیر توانائی ملک فیصل ایوب کھوکھر کی زیر صدارت توانائی کے اہم امور پر اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں سیکریٹری توانائی ڈاکٹر فاروق نوید، ایڈیشنل سیکریٹری ماجد اقبال اور متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات حسن افتخار ڈوگر کی اس رپورٹ میں۔ صوبائی وزیر توانائی ملک فیصل ایوب کھوکھر کی زیر صدارت توانائی کے اہم امور پر اعلیٰ سطح اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں سیکرٹری توانائی ڈاکٹر فاروق نوید، ایڈیشنل سیکرٹری ماجد اقبال اور متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں محکمانہ امور، توانائی منصوبوں اور پاور پلانٹس کی مجموعی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ پاور پلانٹس کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے مؤثر اقدامات پر بھی غور کیا گیا۔ اجلاس میں مستقبل کے توانائی کے چیلنجز اور پالیسی امور کا بھی جائزہ لیا گیا۔ علاوہ ازیں عوام کو سستی اور مسلسل بجلی کی فراہمی کے لیے عملی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صوبائی وزیر توانائی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ توانائی منصوبوں کی بروقت تکمیل حکومت پنجاب کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ عوام کو سستی اور معیاری توانائی کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ کیمرہ مین اسد جٹ کے ہمراہ حسن افتخار ڈوگر، NTN نیوز، لاہور۔ خبر شامل کریں گے۔ ایس ایس پی جیکب آباد محمد کلیم ملک کی قیادت میں جیکب آباد پولیس اور انٹیلیجنس اداروں نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے ایک بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ پولیس اور جرائم پیشہ افراد کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں انعام یافتہ خطرناک اور مطلوب ملزم ہلاک ہو گیا۔ ہلاک ملزم کی شناخت علی جان ولد خان محمد کے نام سے ہوئی ہے، جو تعلق گڑی خیروں کا رہائشی تھا۔ پولیس کے مطابق ملزم ضلع جیکب آباد اور کمبر میں دہشت گردی، قتل، اقدام قتل، اغوا برائے تاوان، پولیس مقابلوں اور غیر قانونی اسلحہ سمیت 70 سے زائد سنگین مقدمات میں مطلوب تھا۔ پولیس نے مقابلے کے بعد ملزم کے قبضے سے کلاشن کوف برآمد کر لی ہے، جبکہ جائے وقوع سے شواہد محفوظ کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ ایس ایس پی محمد کلیم ملک نے پولیس ٹیم کی پیشہ ورانہ کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ ضلع میں جرائم پیشہ، روپوش اور اشتہاری عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی تاکہ امن و امان کو یقینی بنایا جا سکے۔ پولیس کے مطابق ہلاک ملزم کا کرمنل ریکارڈ ضلع کمبرج اور جیکب آباد کے مختلف تھانوں میں موجود تھا، جبکہ اس کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ادھر بھکر میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی فوکل پرسن برائے انسداد پولیو عظمہ کاردار نے ضلع کا دورہ کیا ہے۔ دورے کے دوران عظمہ کاردار نے 4 روزہ انسداد پولیو مہم کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اسی پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے انس ارشاد گادی کی اس رپورٹ میں۔ بکر فوکل پرسن ٹو چیف منسٹر پنجاب برائے انسداد پولیو عظمہ کاردار نے ضلع بکر کا دورہ کیا۔ انہوں نے ڈی سی آفس کے کمیٹی روم میں ضلع بھر میں جاری 4 روزہ انسداد پولیو راؤنڈ کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ لی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر احسان علی جمالی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عبد القدیر، چیف ایگزیکٹو آفس صحت آبادی ڈاکٹر مظہر عباس بلوچ، ممبر امن کمیٹی، میڈیا نمائندگان اور محکمہ صحت کے افسران موجود تھے۔ فوکل پرسن نے مائکرو پلان کا جائزہ لیا اور جاری پولیو مہم راؤنڈ کی پیش رفت پر تفصیلی آگاہی حاصل کی۔ انہوں نے جو ہمیں ہدف دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پولیو کو آپ نے جو ہے 100% ختم کرنا ہے، 0 لیول پہ لے کے آنا ہے۔ فرنٹ لائن ورکرز کی سیکیورٹی کے لیے بھی بہت کنسرن رہتی ہیں، اور جو سیکیورٹی کا انہوں نے کہا ہے کہ 100% ان کو ہمارے پولیو ورکرز ہیں ان کو ملنی چاہیے ہر حالت میں۔ قوم اور حکومت اور میڈیا مل کے کسی بھی جنگ کو جیت سکتے ہیں، اور آپ لوگوں کے توسط سے پھر دوبارہ ہم گھر گھر یہ پیغام پہنچانا چاہیں گے کہ جب پولیو ورکرز آئیں ان کو ویلکم کریں، اور کوئی چیز ان سے آپ چھپائیں نہ۔ کوئی آپ کے گھر میں گیسٹ آیا ہے، کوئی بچہ مسنگ ہے یا کہیں گیا ہوا ہے، ساری انفارمیشن ان کو دیں تاکہ وہ جو ہے اپنا خوش اسلوبی سے اپنا وہ ڈیوٹی پوری کریں۔ آپ کے بچوں کی حفاظت کے لیے وہ نکلے ہوئے ہیں سارے۔ فوکل پرسن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پولیو مہم کو کامیاب بنانے کا عزم کا اظہار کیا اور والدین سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے لازمی پلوائیں۔ ساتھ ہی کیمرہ مین کے ساتھ انس ارشاد گادی، NTN نیوز، بھکر۔ دھند کے باعث نوڈیرو سے لاڑکانہ جانے والی مسافر وین سڑک پر کھڑے ٹریکٹر سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں ڈرائیور سمیت 8 سے زائد مسافر زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں ڈرائیور اسماعیل شیخ کے علاوہ صدام، راہب، گل محمد، خادم حسین اور دیگر مسافر شامل ہیں۔ حادثے کے بعد زخمیوں کو فوری طور پر نوڈیرو اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم چند زخمیوں کو تشویشناک حالت کے باعث لاڑکانہ اسپتال ریفر کر دیا گیا۔ ڈرائیور اسماعیل کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ زخمی مسافروں نے بتایا کہ شدید دھند کے باعث سڑک پر کھڑا ٹریکٹر نظر نہیں آیا، جس کے باعث مسافر وین پیچھے سے ٹکرا گئی اور حادثہ پیش آیا۔
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन ओपन डोर पॉलिसी के तहत खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर की तरफ से थाना DHA में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मुल्तान से हमारे नुमाइंदे मलिक साजिद खोकर अपनी इस रिपोर्ट में। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर की तरफ से थाना DHA में खुली कचहरी का इनकाद किया गया। SP ऑपरेशन हैदर अली, CTO मुल्तान काशिफ असलम, SP गुलगश सैफुल्लाह गुज्जर, DSP सदर राव तारिक परवेज हमरा थे। CPO मुल्तान ने खुली कचहरी में आने वाले शहरियों के मसाइल सुने और मौके पर हल करने के हकामात जारी किए। CPO मुल्तान ने मुतलका अफसरान को हकामात जारी किए कि साइलिन की शिकायत का अजाला करके फौरी रिपोर्ट पेश करें। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर ने पुलिस खिदमत मरकज DHA का भी विजिट किया। सादिक अली डोगर का इस मौका पर कहना था कि खुली कचहरी का मकसद शहरियों के मसाइल इनकी दलीज पर हल करना है। मलिक साजिद खोखर, NTN न्यूज़ मुल्तान। अपडेट करेंगे डिविजनल कमिश्नर हैदराबाद फयाज अब्बासी और DIG हैदराबाद तारिक रजा धारीजो ने कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम के सिलसिले में ज़िला टंडोलायार का दौरा किया। DC ऑफिस में इजलास की सदारत की गई जिसमें पोलियो मुहिम की कारकर्दगी और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया। बादशाह लियाकत गेट टंडोलायार और तालुका सिविल अस्पताल चंबड़ में पोलियो पॉइंट्स का मुआयना किया गया। कमिश्नर और DIG ने पोलियो टीमों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए वालिदैन से बच्चों को पोलियो के खतरे लाजमी पिलवाने की अपील की। उन्होंने हिदायत दी कि पोलियो टीमों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाए और कोई भी बच्चा पोलियो के खतरों से महरूम न रहे। पाकपतन के नवाही दरियाई इलाके फरीद शाह की पसमानदगी को दूर करने के लिए फौजी फर्टिलाइजर्स की जानिब से बड़ा कदम उठाया गया है। कम्युनिटी की तरक्की के लिए सांझा चूल्हा और वर्मिंग कंपोजिट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया है जिससे सैकड़ों खवातीन घर बैठे मुस्तफीद हो सकेंगी। मजीद अहवाल जानते हैं मंसूर हुसैन कच्ची की इस रिपोर्ट में। पाकपतन के दरियाई इलाकों को हमेशा ही पसमानदगी का सामना रहा जहाँ रोजगार के मौके बहुत कम है। इन हालात में फौजी फर्टिलाइजर ने फरीद शाह के बासियों खास तौर पर खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए एक मिसाली कदम उठाया है। यहाँ बाकायदा तौर पर सांझा चूल्हा और वर्मिंग कंपोस्ट प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया गया है। वर्मिंग कंपोस्ट का ये मनसूबा खवातीन को घर बैठे माहौल दोस्त खाद तैयार करने का मौका फराहम करेगा, जबकि सांझा चूल्हा के जरिए कम्युनिटी के खवातीन इज्तिमाई तौर पर खाना पकाने और दीगर छोटे कारोबारों से मुंसलिक हो सकेंगी। इस इकदाम का मकसद इलाके में सिर्फ माली खुशहाली लाना नहीं बल्कि खवातीन में खुद एतमादी और खुद रोजगारी का शऊर भी पैदा करना है। यहाँ पर आए मेहमान खुसूसी सितारा वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन चौधरी तैर इकबाल जट का कहना है, तंदूर वाला इन्होंने मुझे कहा कि हम एक सांझ तंदूर ओपन करना चाहते हैं, तो बड़ी खुशी हुई मुझे। मैंने फिर इस गांव की सिलेक्शन की, हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जो सांझ तंदूर के नाम से है। आज वो ऑपरेशनल हो चुका है। उस पे हर घर से मेरी माँ मेरी बहन आएगी और साफ सुथरे माहौल में अपनी कुकिंग कर सकेगी। चौधरी तैर इकबाल जट की जानिब से लाया गया ये गरीब दोस्त प्रोजेक्ट आवाम के लिए सूदमंद साबित होगा। इनका मजीद कहना है कि फौजी फर्टिलाइजर का ये मनसूबा इनके लिए उम्मीद की एक नई किरण, सांझा चूल्हा और वर्मिंग कंपोस्ट जैसे प्रोजेक्ट से सैकड़ों खवातीन के घर बैठे रोजगार के दरवाजे खुल गए हैं, जो कि पसमानदा इलाकों में तरक्की का एक बेहतरीन नमूना है। कैमरा टीम के साथ मंसूर हुसैन खिच्ची, नुमाइंदा NTN न्यूज़ आरिफ वाला। अहम खबर से अपने नाज़रीन को आगाह करते चले। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुज़ाकराती कमेटी का मुशावरती इजलास TGA में जारी है। कुछ देर बाद कस्टम हाउस में विफाक, पंजाब और सिंध की मुज़ाकराती कमेटियों से मुज़ाकरात होंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर अलायंस की हड़ताल 10वें दिन में दाखिल हो चुकी है। हड़ताल के बायस कौमी सप्लाई चेन मफलूज होकर रह गई है। मईशत और हुकूमती महासिल मुतासर होने का खदशा भी पैदा हो गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे आरिफ हबीब से। जी आरिफ, अपडेट कीजिएगा। जी देखें, गुड्स ट्रांसपोर्टर की मुज़ाकराती कमेटी का मुशावरत जारी है, जबकि कस्टम हाउस में वफाक, पंजाब और सिंध की मुज़ाकराती कमेटियों से भी मुज़ाकरात जा रही हैं। हुकूमती कमेटियों ने ट्रांसपोर्टर्स के जो मुतालबात हैं उनको जायज़ करार दिया गया है, जबकि इस वजह से कौमी सप्लाई चेन मफलूज हुई है। मईशत और हुकूमती जो महासिल है वो उस पर कभी मुतासर होने का कराची के दोनों जो पोर्ट्स हैं उस पर ऑपरेशन जो है वो मुअत्तल है, जबकि जहाज बरामदी करने के लिए बगैर रवाना हो रहे हैं। आरिफ, मुझे ये भी बताइएगा कि यकीनन 10 दिन से ये हड़ताल जारी है, तो किस हद तक नुकसान हुआ है ताजरों को भी, और इसके अलावा पाकिस्तान की मईशत को किस हद तक नुकसान पहुंचा है इससे?
जी देखिए, बिल्कुल इससे सिर्फ एक तरह से जो अफराद हैं वो मुतासर हुए और करोड़ रुपए का जो नुकसान ताजिरों को और सनतकारों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है, क्योंकि कराची के जो दोनों पोर्ट्स हैं उस पर ऑपरेशन मुअत्तल है और जहाज बरामदी कंटेनर लिए बगैर रवाना हो रहे हैं, जबकि शिपिंग लाइन के डैमेज और ड्रेनेज चार्जेस है उसका भी जो है वो इनको नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अच्छा आरिफ, मुझे ये भी बताइएगा कि चूंकि इनके मुज़ाकरात को जो भी वो बात करना चाह रहे हैं, जो भी उनके मुतालबात हैं, उनको काबिल गौर करार दिया गया है, यानी एक्सेप्टेबल हैं ये कहा गया है, तो मुझे बताइएगा कि डिले किस वजह से था? अभी तक 10 दिन गुजर गए, उसके बावजूद कोई पेशरफ सामने नहीं आई है, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए हुकूमती कमेटियों ने जो ट्रांसपोर्ट के जो मुतालबात हैं उनको जायज़ करार दिया गया है और इसीलिए वफाक की सतह और पंजाब और सिंध की जो मुज़ाकराती कमेटी है उनसे इसके हवाले से कुछ ट्रांसपोर्ट के मुतालबात जो है वो मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। कौमी सप्लाई की जो चेंज मफलूज है उससे करोड़ रुपए का नुकसान भी हो रहा है और जो एंडर्स है मुहासिल है उसको भी अंदेशा है कि उसको भी नुकसान पहुंचने का खदशा पैदा हो गया, जिसके बाद जो मुज़ाकराती कमेटी है इनका मशावरती इजलास से जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब तफसीलात से आगाह करने के लिए। अपने नाज़रीन को आगाह करते चलें कि गुड्स ट्रांसपोर्टर अलायंस की जानिब से हड़ताल 10वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है और इस वक्त मुज़ाकराती इजलास जारी है। साथ ही साथ अपने नाज़रीन को ये भी आगाह करते चलें कि गुड्स ट्रांसपोर्टर अलायंस के जो मुज़ाकरात हैं, मुतालबात हैं, उनको जायज़ करार दिया गया है और विफाक, पंजाब और सिंध का जो मुशावरती इजलास है इस वक्त जारी है और अब देखना ये है कि ये कब इख्तिताम पजीर होगा और कौन से मुतालबात इनके मंजूर किए जाते हैं, ये अभी सामने आना बाकी है। धुंध और क्रशिंग सीजन के पेश नज़र मोटरवे पुलिस रहीम या खान की जानिब से कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक हादसा से बचाव और महफूज सफ़र को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं, जबकि रोड यूज़र्स को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत भी की जा रही है। मज़ीद जानते हैं जमशेद समद से। जी जमशेद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, क्रशिंग सीजन का आगाज हो चुका है और सीजन के आगाज होते ही धुंध ने लियाकतपुर में डेरे डाल दिए हैं और धुंध की वजह से चूंकि हादसा रूनुमा होते हैं, इसलिए एसपी मोटरवे ने ऐसी हिकमत अमली तैयार की है कि हादसा रूनुमा ना हो सके। वहीं उनसे बात कर लेते हैं। जी बताइएगा, ऐसी कौन सी हिकमत अमली तैयार की गई है जिसकी वजह से हादसा रोके जा सके? जी बहुत शुक्रिया। आपको पता है कि धुंध का आगाज़ हो चुका है और इस धुंध के अंदर आपको पता है रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट जो है ये पूरे का पूरा शुगर केन का डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे शुगर केन का सीज़न भी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पीक पे है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो चल रही है इसमें हमने रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल, बैक लाइट्स का इस्तेमाल, इसके अलावा हमने ब्रीफिंग शुरू कर दिया है। टाल प्लाजाज के ऊपर हमने इलेक्ट्रॉनिक साइन बोर्ड लगा दिया ताकि लोगों को पता चले आगे धुंध पड़ रही है। इसके अलावा जो स्लो मूविंग व्हीकल्स हैं उनके पीछे भी हम रिफ्लेक्टिंग स्टिकर जो है ना वो चश्मा कर रहे हैं ताकि उन पीछे से जो आ रहा है उसको नज़र आ जाए कि आगे कोई एनिमल कार्ट या कोई एनिमल ड्रॉन व्हीकल या कोई स्लो मूविंग व्हीकल जा रही है। इसके साथ साथ मेरी पूरी अवाम उन्नास से इल्तमास है जो मुझे सुन रहे हैं, इस वक्त देख रहे हैं कि धुंध के सीज़न में रोड के ऊपर निकलने से एहतियात करें। इंतहाई मजबूरी की सूरत में आप ट्रैवल करें क्योंकि फॉग में कुछ नज़र नहीं आता और खुदा न खासा ना पहुँचने से देर से पहुँचना बेहतर है। वेट कर लें, विजिबिलिटी इंप्रूव होने दें, फिर रोड के ऊपर चलें। तो हमारी काफियों से इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि कम से कम या ना होने के बराबर कोई माली नुकसान हो। थैंक यू। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना राना इस्माइल साहब की गुफ्तगू आपने सुन रहे थे कि गन्ने की ट्रालियों के पीछे हमने रिफ्लेक्टर में सब कर दिए हैं और हर ट्राली मेंबर को ये रिफ्लेक्टर दिए जा चुके हैं ताकि रात के वक्त ये रिफ्लेक्टर ट्राली के पीछे लगाया जा सके। और जैसा कि उन्होंने कहा कि ना पहुंचने से देर से पहुंचना बेहतर है और धुंध की वजह से जो लोग हैं घरों से बाहर कम निकले। जी डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव की ज़ेर सदारत ननकाना साहब को मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए आला सतह का इजलास, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर समेत तमाम इदारों के ज़िले अफसरान की शिरकत। तफसीलात जानते हैं मियाँ मोहम्मद अजमल की इस रिपोर्ट में। इसी मौके पर मॉडल डिस्ट्रिक्ट के तहत जिले के हर देहात से मंडियों तक रसाई यकीनी बनाने, सैलाब की जद में आने वाले बादियों को बचाने के लिए दरियाई बंद बांधने, जिले में मॉडल कैटल मंडी के क्याम, मॉडल डिस्ट्रिक्ट में स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल लाइब्रेरी के क्याम, सब्जी और फ्रूट मंडियों को शहरों से बाहर मुंतकिल करना, मॉडल डिस्ट्रिक्ट में हेल्थ, एजुकेशन और दीगर फेस्टिवल्स की रसाई वाम के घर की दहलीज तक यकीनी बनाने का फैसला किया गया। जिले में नई फूड स्ट्रीट बनाई जाएगी। जिले में नर्सिंग और टेक्निकल कॉलेज का क्याम अमल में लाया जाएगा।
जिली इदारों को सरकारी बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा। मॉडल डिस्ट्रिक्ट में नए इंफ्रास्ट्रक्चर से पहले गैस पाइपलाइन, वाटर सप्लाई, सीवरेज और बिजली की वायर पहले बिछाई जाएगी। अगले 30 साल को मद्देनजर रखते हुए प्लान बनाए जाएंगे। बाईलाज पर अमल दरामद करवाया जाएगा। नए बस स्टैंड और सीवर टर्मिनेट प्लांट्स बनाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने मॉडल डिस्ट्रिक्ट के हवाले से तमाम महकमों से एक हफ्ते में प्लान तलब कर लिया। कैमरामैन मियां मोहम्मद असलम के साथ मियां मोहम्मद अजमल शहजाद, NTN न्यूज़, ननकाना साहब। हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक इंतजामिया की जानिब से चिन्योट के मुख्तलिफ मकामात पर पोलियो सेंटर कायम। वालिदैन अपने बच्चों को 2 बूंद पोलियो के कतरे पिलाकर उम्र भर की माजूरी से बचा सकते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं चिन्योट से अपने नुमाइंदे कैसर वैन से। जी कैसर। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ चिन्योट DH हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है मुख्तलिफ मकामात पर पोलियो सेंटर कायम कर दिए गए, जहाँ पर जो है बच्चों को जो है पोलियो कतरे पिलाए जा रहे हैं ताकि उम्र भर माजूरी से उनको बचाया जा सके। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, आप क्या कहेंगे। हम ये बता सकते हैं भाई, हुकूमत की तरफ जितने भी सेंटर बने हैं ना पोलियो के, वो वाले साहब वो बच्चे अपने लेकर आए, सेंटर के खातिर कतरे पिलाएं, और हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छे सेंटर। जी बिल्कुल, यहाँ पे शहरी का कहना है हुकूमत पंजाब की जानिब से सेंटर कायम किए गए हैं, बच्चों को कतरे लाजमी पिलाएं। इस वक्त हमारे से दीगर शहरी मौजूद हो, जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, पोलियो सेंटर कायम किए गए हैं, बच्चों को पोलियो कतरे पिलाए जा रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे। बच्चों को लाजमी कतरे पिलवाएं, क्योंकि इनकी मजदूरी का भी सबब बन सकते हैं, इन्हें बचाएं। और इस जी बिल्कुल, यहाँ पे शहरियों का कहना है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है मुख्तलिफ मकामात पर जो है पोलियो सेंटर कायम कर दिए गए हैं, जहाँ पर जो है बच्चों को जो है पोलियो कतरे पिलाए जा रहे हैं। जबकि शहरियों का कहना है कि वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को जो है 2 बूंद कतरे जो है पोलियो को लाजमी पिलाएं ताकि उम्र भर माजूरी से बचाया जा सके। जी पीर ऑफ बाहू सुल्तान हज़रत अल्लामा सखी सुल्तान मोहम्मद मारूफ अली सरवरी कादरी ने NTN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुजूर की ज़िंदगी पर अमल पैरा होकर दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिल सकती है। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। अरे भाई, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत और हुजूर का उसवा हसना, यही ईमान की असल है। आपके सामने पूरा अमली नमूना सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगियों का मौजूद है कि इस्लाम से कबल अब्दुल्ला इब्न उस्मान जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लेके आए, तो अब्दुल्ला इब्न उस्मान यानी अबी कुहाफा के बेटे फिर अब्दुल्ला नहीं रहे, सिद्दीक़ अकबर और अफजलुल बशर बादल अंबिया बने। पाक पतन में सर्दियों का आगाज़ होते ही गर्म मलबूसात की खरीदारी भी तेज़ हो गई है। गरीब और आम तबका लंडे बाज़ारों से गर्म मलबूसात खरीदने में मसरूफ़ है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैफ खान लंडा बाज़ार में दुकानदार और ख़रीदारों के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी सैफ, बताइएगा क्या कहना है दुकानदारों का। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ पाक पतन के शहरियों ने लंडे बाजार का रुख कर लिया। लंडा बाजार की रौनकें बहाल होगी। यहाँ से कुछ शहरी खरीदारी कर रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी बताइएगा, आप क्या खरीद रहे हैं। यानी कि हम बाजार में गए थे, बाजार में बहुत महंगाई थी, हम इधर लंडे पे आए। लंडा सस्ता है, बहुत आला मेयार की चीजें हैं, इधर बहुत अच्छी वैरायटी है, ब्रांड नाले सस्ता माल मिलता है। इधर से हमने 3 कोट लिए, इधर से 2 जैकेटें लिए, वो ही हम बाजार से लेते तो 1 जैकेट मिलनी थी उतने रेट में। जी खरीदार की बात सुनी, जैसे उनका कहना है कि बाजार से चीजें लेना उनके लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए इधर से चीजें खरीद कर वो अपनी सर्दी की शिद्दत में कमी लाते हैं। पंजाब के रिवायती खेल कबड्डी को नई नस्ल में मकबूल बनाने की कोशिशें जारी। कौमी कबड्डी टीम के खिलाड़ी शाहिद पत्रा ने पाकपतन में नौजवानों को अखाड़े में तरबियत देना शुरू कर दी। इसी हवाले से देखते हैं पाकपतन से जहीर अहमद तारड़ की ये रिपोर्ट। धूल उड़ाते मैदान में कबड्डी का जोश। कौमी खिलाड़ी शाहिद पत्रा नौजवानों को सिर्फ दाव पेच ही नहीं बल्कि अज़म, हौसला और टीम वर्क का सबक भी दे रहे हैं। शाहिद पत्रा की सरबराही में पाकपतन के इलाके मलका हास के नौजवान रोज अखाड़े में पसीना बहाकर अपनी फिटनेस और महारत निखार रहे हैं। गलत कम्मा तो मनशियात फरोशां तो साडे मुंडे बचन ते माशाअल्लाह साडा यही कर रहे हैं कि साडे इलाके दे मुंडे ते कोरोना जान ते अलहमदुलिल्लाह बहुत पाकिस्तान नाम रोशन करके आए, बाहर खेले असी ते इसे कहने भी साढ़े नवे मुंडे कड़े आ रहे हैं, नवे मुंडे गेम च आन ते वो भी पाकिस्तान दा
ਤੇ बैन अवी सतह ਤੇ नाम रोशन करना पाकिस्तान ਦਾ। कौमी टीम के खिलाड़ी शाहिद पत्रा का कहना है कि कबड्डी सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक मिशन है जिसका मकसद नौजवानों को मनशियात, बेराह रवी और मनफी सरगर्मियों से दूर रखना है। ਕਬੱਡੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ बेस पे ट्रेनिंग करने हैं, आपस में दौर करने हैं। खेलों के मैदान आबाद होंगे तो मुआशरा मजबूत होगा और कबड्डी जैसे देसी खेल नई नस्ल के जोश में नई जान डाल रहे हैं। शोरकोट में इंटर तहसील गर्ल्स स्कूल और कॉलेजेस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में सिर्फ 2 टीम्स ने हिस्सा लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मंजूरुल हसन सियाल। शोरकोट इंटर तहसील गर्ल्स स्कूल व कॉलेज स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में सिर्फ 2 टीम ने हिस्सा लिया। आज होने वाले मैचेस में गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की तालबात ने हिस्सा लिया। 13 दिसंबर से 17 दिसंबर तक ये मैचेस जारी रहेंगे। बैडमिंटन, टेबल टेनिस और गेम्स खेली जा रही हैं। इस तरह के मैचेस तालबात के लिए बहुत अहम होते हैं। तालबात ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा करते हुए कहा कि इस तरह के मजीद इवेंट करवाते रहना चाहिए। कैमरा टीम कैमरा मंजूर सियाल, NTN न्यूज, शोरकोट। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहें NTN न्यूज।